आपका एरिया इंटू लेंथ होता है हमेशा। हाँ एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। yes, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो इसमें से एरिया और लेंथ आ ही जाएगा। आप किस में बोल रहे हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एज? कौन से वॉल्यूम बोल रहे हो? सिलिंड्रिकल? मैम जो में था यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील हाँ, तो वायर तो सिलिंड्रिकल है ना, वायर तो सिलिंड्रिकल है, तो उसके यहाँ वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ये एच है। ओके एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ, और यू कैन राइट एरिया इंटू हाइट इज योर वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जहां जहां भी आएगा वो एरिया इंटू हाइट में ही आएगा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हिमांशु। नाउ you tell me, we are doing some numericals today. All formulas I think we have done. You have remembered all formula. MCQ based question is also coming. Don't think that MCQ is stopped. MCQ is still there. ठीक है, तो we'll do some questions. पहला क्वेश्चन मैं यहाँ दे रही हूँ आपको, based on Young's modulus of elasticity. I think all formula you know. Otherwise I can write the formula here. What is the formula for Y? Young's modulus of elasticity. One answer. G by pi r press upon normal Delta. strain. Okay. What is your B bulk modulus? That is your pressure divided by minus delta V into V. यही दो फॉर्मूला में भी आपको दूसरे है। Ma'am, the board is not properly visible. Board is not properly visible. Upper board. Upper part is not visible. No, ma'am. Ma'am, now Correct. it's. Now it is okay. Yes, ma'am. बीच में लाइट आ रहा है ना? Yes, ma'am. उस पोर्शन में अवॉइड करें, उस पोर्शन में अवॉइड करेंगे लिखने के लिए, ठीक है। और एक मेरे शैडो आ रहे हैं, that also I can avoid by using this. Okay. Now you can tell me, suppose I have given you a question जिसमें टेंशन इन द मटेरियल इज T1. ये सिंपली एक हैंगिंग वायर है, इसमें टेंशन T1 होता है। टेंशन T1 की कंडीशंस क्या है? इट्स लेंथ इज L1। जब लेंथ L1 होता है टेंशन T1 होता है, ठीक है। जब लेंथ L2 होता है टेंशन T2 है। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है? एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज L1, tension in it is T1. If its length is L2, tension is T2. Then what is the original length of the metal wire? What of the wire is same? कौन से प्रॉपर्टी उसका सेम है? Young modulus. Young's modulus of elasticity. So based on that you can find out. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it's Yes. T2 L1 minus T1 L2 upon में T2 minus T1. T2 L1 minus T1 L2 या T1 L2 minus T2 L1? Ma'am, T2 L1 minus T1 L2 upon में T2 minus T1. Or the opposite one? Ma'am, This इसी one का or what you? मैम इसका अपोजिट होगा ना, T1 minus T1 L2, T2 L1 minus T1 L2. करके देखो। What is same for you? Y. Y की फॉर्मूला क्या है? Suppose in the first case y is equal to F1L divided by area. Area into delta 1. Delta area L. delta L1. L1 ही है ना फर्स्ट क्वेश्चन में? Yes, ma'am. सेकंड में y remaining same, F2L divided by area into delta L2. Ma'am, T2 minus. Okay,
your answer may be correct. You are having f by these two things are same. इसमें से हमें क्या मिल रहा है? f1 को हम t1 ले लेते हैं. ये f1 नहीं है, ये t1 है. ये f2 नहीं है, t2 है. ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं. ठीक है, तो डेल्टा L1 क्या है? T1 L by A दोनों से कैंसिल हो गया. डेल्टा L1 इज योर L minus L1 ओरिजिनल लेंथ माइनस Minus. एक्सटेंडेड लेंथ Yes, ma'am. और द अपोजिट. हाँ, इसमें डिपेंड करेगा. L इज योर ओरिजिनल लेंथ, L1 इज योर एक्सटेंडेड. हम L1 minus L. हाँ हाँ, तब आपका आंसर चेंज हो रहा है. इफ इट इज L1 minus L, this is equal to T2 by L2 minus L, then you are having T2 L1 minus T1 L2. क्योंकि आंसर में ये भी मिलेगा आपको, जो मैंने आंसर लिखा था पहले ना, T1 L2 minus T2 L1, that is also there in the choice. Any doubt here? Panak, are you understanding? No. Panak, are you here? Yes, No. ma'am. Are you understanding this question? Ma'am, I just joined. I was having network problems. So. Problem दिया हुआ है, when the tension in a metal wire is T1, length is L1, or when the length is L2, tension is T2. You have to find out the original length. मैम T1 मैम जो आपने पहले लिखा था शायद वही आ रहा था. वही आ रहा था. मैम एक मिनट. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. T1 L2 minus T1 Yes, L मैम जो पहले is equivalent T2 L1 मैम जो ऊपर minus होगा, T2 L. जो ऊपर तो पहले इसमें होगा से अगर वही मैं नीचे. अगर मैं L कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ रहा है T2 minus T1. This is equivalent to T2 L1 minus T1 L2. ये ठीक है. This answer is correct. मैम नहीं Other फिर option नीचे is wrong. T1 आएगा ना. हाँ, मैम तो नीचे अगर T2 minus T1 होगा. हाँ, ठीक है तो ठीक है, वही नीचे T2 जो minus पहले L लिखा है. था वही. T2 L1 minus T1 L2 divided by T2 minus T1. इसका मतलब दोनों आंसर करेक्ट है. मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया T1 L1 minus T2 L2 डिवाइडेड बाय T1 minus T2. तो मैंने मिस्टेक क्या किया था? मैम मिस्टेक नहीं था, बस वो दोनों और सही था, दोनों सही है. माइनस को. दोनों सही है, लेकिन एक आंसर में यहाँ T2 minus T1, दोनों में T2 minus T1 था, लेकिन मैंने तो T1 minus T2 लिखा था ना. ये आंसर भी करेक्ट था. ओके, यस मैम. Yes, ma'am. दोनों आंसर करेक्ट है. माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हो रहे हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? आई होप No. यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इस टाइप के आपका क्वेश्चंस आएगा. डाउट MCQ. पूछना. हम ऐसे क्वेश्चन में से हम ओरिजिनल लेंथ को क्यों माइनस करते हैं गिवन लेंथ में से? आई मीन ओरिजिनल लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए थी? देखो, ये लेंथ दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है. आप इसके ऊपर वो वेट हैंगिंग कंडीशन में रख रहे हैं, तो ये 10 से बढ़ के 15 हो गया. तो बड़ा कौन सा है? ओके, न्यू लेंथ. या यहाँ से यहाँ तक हम L मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम L1 मान रहे हैं. है समझ में? हम एक्सटेंडेड ma'am. लेंथ नहीं ले रहे हैं. तुम सही बोल रहे हो. एक्सटेंडेड लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 5 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर उससे बड़ा है, लेकिन हम पूरे लेंथ ले रहे हैं. ओरिजिनल लेंथ यहाँ है, यहाँ न्यू लेंथ यहाँ है. The length is L1 when tension is T1. Length is L2 when tension is T2. आया समझ में? Okay. Yes, ma'am. Okay. Next question. You are given two metal wires P and Q. P and Q are two metal wires. इसमें से क्या दिया हुआ है आपको? They are of same length and material. They are stressed by the same load. यहाँ जो आप लोड और टेंशन अप्लाई करो, जो फोर्स अप्लाई करो, दोनों में सेम है. ठीक है. Their masses are in the ratio m1:m2. इसका m1 है, इसका m2 है. मासेस का रेशियो m1/m2 है. रेशियो ऑफ द एलोंगेशन, ये जो डेल्टा L का रेशियो कितना होगा बताओ? डेल्टा L1/डेल्टा L2 कितना होगा?
What is given to you? मैम एक बार Given thing is your mass ratio. ठीक है, और सारे सेम दिया हुआ है. आपको पूछा हुआ है elongation के रेशियो. Elongation के रेशियो in terms of mass you have to give. As again I'm telling, there are two wires. They are of same length, same material. They are stressed by the same load. Their masses ratio is M1 is to M2. What will be the ratio of their elongation? मैम In terms of M1 and 1:2. 1 2 नहीं ना, M1 M2 के टर्म में आएगा सिर्फ. M1G plus F by M2G plus F. नहीं, ऐसे नहीं आएगा. आपको मैंने इसका आंसर दे दूं, उसमें से फिर क्या करोगे, गेस करोगे. आंसर हमें देने एक से क्या मिनट होता है, 4 बच्चे. Answer is in terms of M1 and M2. आंसर आपका M1 स्क्वायर इज टू M2 स्क्वायर, फिर M2 स्क्वायर इज टू M1 स्क्वायर, फिर आपके पास M2 मास इज टू इसका M1. फिर वो मास ही M1 और M2 है. मास M1 M2, मास के रेशियो है M1 इज टू M2. मास रेशियो M1 इज टू M2 है. मास रेशियो इज M1 M2. हर्ष की कॉलर है. M1 by M2 is the mass ratio. Yes. इसी को सॉल्व किया मैं पहले. स्टार्टिंग में डाउट था, मास कैसे लाओगे इक्वेशन में, मास आप कैसे लाओगे. मैम एक मिनट मैम एक मिनट. Dishita, where are you? Dishita, where are you? You're not यस answering. मैम. इससे तो कोई क्लास में आंसर नहीं करो, फिर इसको डर डर के तुम्हारा और डर बढ़ जाएगा. नहीं. शाश्वत तिवारी, अमन, are you present today? Yes, ma'am. Then tell me the answer. मैम M2 square is to M1 square. कुछ करके बोल रहे हो या ऐसे बिना किए बोल दिए, क्योंकि बड़ा लग रहा है. तो स्क्वायर बाय करके. M1 स्क्वायर ऐसे किए तुम. क्या सेम है दोनों तार का? मैम यंग मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस सेम है, फोर्स सेम है, एरिया सेम है, मैम डेल्टा एल. लेंथ भी सेम है. डेल्टा एल सेम है. उसी के तो निकालनी शायद. What will be the answer? Anyone? All 4 answers are here. First, second, third, fourth. मैम मेरा तो फोर्थ पार्ट आ रहा है. फोर्थ पार्ट आ रहे हैं. और किसका कौन सी पार्ट आ रहे हैं? 4 बच्चे मिलके 4 पार्ट बोल देंगे, हो गया मेरा आंसर. और किसका कोई पार्ट आ रहा है? वन किसका आ रहा था? नहीं, रेशियो बताना है. रेशियो बताना है. डेल्टा एल पी बाई डेल्टा एल क्यू इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा एल किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है. सारे तो कांस्टेंट दे दिए, और बचा क्या डेल्टा एल के लिए? डेल्टा एल किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? एरिया. एरिया. हुई टेलिंग? गुड. जो भी बोल रहे हो अच्छे बोलो. डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हियर, दैट इज द क्लू विथ यू.
डेल्टा एल कैसे एरिया के ऊपर प्रोपोर्शनल हुआ, दैट यू शुड नो. y is equivalent to fl divided by a FL delta by L. A delta L. ये y का कॉमन फॉर्मूला है आपके पास. y सेम है, f सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये आपका एरिया है, डेल्टा एल है. यही दोनों ही डिफरेंट होगा बिकॉज दे हैव नो, वी डोंट हैव एनी क्लू हियर. अगर सारे सेम है मैम तो आपने डेल्टा एल की एरिया वैल्यू सेम नहीं, एरिया सेम मैंने नहीं बोली थी. डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और मास और एरिया के बीच में रिलेशन क्या है? मास इज इक्विवेलेंट टू, आज की क्लास के स्टार्टिंग में हम करवाए हैं, मास और Density एरिया. into area into height. डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एल. तो मास एरिया के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल है? Directly. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ए मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बट डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. तो ये क्या हो जाएगा रेशियो? मैम M2 is to M1 आएगा. Yes. Third one is the answer. M2 is to M1. Are you getting? Kanak, are you getting the answer? M2 is to M1 is the answer. मैम प्लीज Kanak, yes बोलो. Again I'm telling, you are given, मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रही हूँ. Two metal wires P and Q of same length and material are stressed by same load. Length L same हो गया, material same means Young's modulus of elasticity is same, and they are stressed by same load means F is same. Their masses are in the ratio M1 is to M2. ठीक है, you have to find the ratio of the elongation. तो elongation किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वो भी कैसे हुआ? आप डेल्टा एल की इक्वेशन निकालो. इस इक्वेशन में डेल्टा एल कैसे होगा? डेल्टा एल को इस साइड ले आओ, तो आपके पास इक्वेशन आ गया एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई. एफ कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, तो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो अगर मास का रेशियो मेरे पास m1 by m2 है में, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m2 by m1 हो जाएगा. अंडरस्टूड? ऐसा नो? यस मैम. यस मैम. ओके. सारे क्लू देने के बाद आंसर आ जाता है, यानी कि नहीं आता है, बट ये फॉर्मूला सारा आपको याद रखना पड़ेगा. यू शुड गिव द आंसर विदाउट क्लू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैन ग्रोज इनटू ए जायंट शेप. जैसे पैंडेमिक में खा खा गया ना, एक पतला सा बच्चा घर में इतना मोटा हो गया, देख रहे हो, इतना मोटा हो गया. कोई हुआ है हमारे क्लास में भी. ए मैन ग्रोज इनटू ए जायंट शेप सच दैट इट्स लिनियर डायमेंशन increases by a factor of 9. सोच रहे हो, linear dimension increases by a factor of 9. डायमेंशन मतलब पूरा हाइट वेट सब कुछ, इसका पूरे बॉडी के शेप जो स्ट्रक्चर था ना, वही 9 टाइम्स बढ़ गया. जैसे ये डस्टर है, डस्टर का डायमेंशन आपको मिलेगा, तो ये लेंथ मिलेगा, ब्रेड्थ मिलेगा, थिकनेस मिलेगा. ठीक है, क्यूबॉइड शेप में. और डायमेंशन बढ़ गया कि मीनिंग क्या है? पूरा बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया उसमें. कितने? बाय ए फैक्टर ऑफ 9. एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी रिमेन सेम, उसका डेंसिटी सेम रहा. द स्ट्रेस इन द लेग, वो जो चलने लगेगा उसके लेग में स्ट्रेस इन द लेग चेंज बाय ए फैक्टर, कितना होगा? अगर ये 9 फैक्टर में बढ़ गया तो उसका स्ट्रेस जो है, लेग के स्ट्रेस, बॉडी उसका वेट बढ़ गया तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा. तो कितने मैम बढ़ेगा? डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है. डेंसिटी कांस्टेंट है, बॉडी का मटेरियल चेंज नहीं हुआ. अगेन स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, सेम फॉर्मूला.
यस एनी आंसर? कहाँ से आओगे बताओ, ये नहीं आइडिया कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेम फॉर्मूला, मास को ही एक्सपैंड करोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, फिर आप स्ट्रेस का प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर निकालोगे। स्ट्रेस किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? स्ट्रेस के फॉर्मूला आपके पास क्या है? फोर्स बाय एरिया, यस और नो? Yes, ma'am. यस फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स आपके ह्यूमन बॉडी के लिए फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg बाय एरिया, यस और नो? तो mg क्या होगा, m क्या होगा? अब ये भी दिखाए थे। मास क्या है? 9 डेंसिटी रिमेनिंग सेम, रो इनटू v मैम 9 टाइम्स g आ by रहा है। a. 9 times is the correct answer, yes. Rho into v into g by a. तो v को क्या करोगे? v इज कितना? एल क्यू मैम जी एल क्यू डिवाइड एल स्क्वायर। इसके ऊपर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ये डायमेंशन आपका 9 में इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ कितना होगा? स्ट्रेस उतना ही होगा बाय फैक्टर ऑफ 9। आंसर में आपका 9, 1/9, 1/81, 81 दिया हुआ है। यू विल गिव द टिक मार्क टू 9। अंडरस्टूड? एनी डाउट? किसको डाउट है? Dishita, are you listening? Any doubt you are having? Can ask. Himanshu, understood? Aryan, are you present today? Yes, ma'am. Aryan, समझ में आ गया तुम्हें? Yes, ma'am. ओके। ए लिक्विड जिसका बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस आपको K दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस इज K. इट इज कंप्रेस्ड, दैट लिक्विड इज कंप्रेस्ड. कितना अमाउंट? कंप्रेस्ड by 0.01%. compressed by 0.01%. ठीक है? नहीं, it is compressed by applying external pressure so that its density increases. So it compressed, इसका density increases by जब वो compress किया गया तो उसका density increases by 0.01%. तो प्रेशर कितना चेंज होगा? प्रेशर कितना होगा? अगर डेंसिटी उसका 0.01% बढ़ गया तो प्रेशर कितना होगा? K के टर्म में. योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ K. आंसर दिया हुआ है K by 1000, 10,000, 1000 K, 0.01 K. K by 1000, K by 10,000, 1000 into K, ठीक है, और 0.01 K. ये चार आपका आंसर में है. विदाउट गेस सॉल्व इट प्रॉपर्ली एंड टेल मी. Density increases by 0.01%. Okay? मैम 0.01 के 0.01 K मतलब K डिवाइडेड बाय 10,000. नहीं, मैम डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. K by 10 What की about power other? 4 आ K by 10,000. Someone is telling this is the answer. Someone is telling this is the answer. Which one is the correct one? Withdraw कौन कर रहा है? We are having two answers now. What is the formula? Bulk modulus. Start करो. Minus PV by delta V. delta V. Bulk modulus of elasticity. ठीक है? Yes, यस ma'am. मैम. K minus P delta V by V. ये आपके पास फॉर्मूला है. तो P के फॉर्मूला P by K. ये प्रेशर है. माइनस के डेल्टा वी बाय वी. हाँ, P by K हो जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा V by V. ठीक है? तो माइनस डेल्टा V by V में क्या होगा आपके पास? वॉल्यूम आपको Ma'am, रो constant GH है में तो है.
डेंसिटी से ये डेंसिटी के साथ ही आएगा, डेल्टा रो बाई रो, जो डेंसिटी आपका चेंज हो रहा है। तो P क्या है? P इज इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा रो बाई रो। डेल्टा रो बाई रो आपको कितना दिया हुआ है? 0.01%। 0.01/100 तो कितना हो गया? What is the answer? कैसे 0.01? K इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 100% दिया हुआ है, तो कितना होगा आंसर? ओके, आंसर गलत होने के बाद आप खाली 0.01% यह आंसर दे देते हो डिवाइडेड बाई 100% में। दिस इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय एस वाज गिवन दिस आंसर अमन। अमन एस, कल के क्लास में तुम नहीं थे। एनी डाउट हियर? आर्यन, No, ma'am. आर्यन डू यू हैव? चलो अच्छा है। कनक ऐसे एक एक करके दिन में एटलीस्ट 25 न्यूमेरिकल स्पीचेस का हो जाना चाहिए, लेकिन सारे न्यूमेरिकल से स्टैंडर्ड पैटर्न का होना चाहिए, बहुत ही हाई नहीं, बहुत ही लो नहीं। कनक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाटएवर बुक्स यू आर हैविंग, आपके पास सोर्स सफिशिएंट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? नेक्स्ट, a wire elongates by L millimeter when a load W is hanged from it. This is a wire. इसमें जब W weight हैंगिंग किया है, इसका एलोंगेशन क्या होता है? L मिलीमीटर। L मिलीमीटर इसका एलोंगेशन होता है जब W इसके साथ अटैच होता है। When W is attached, its elongation is L. ठीक है? If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire will be, it is going over a pulley एक बार and कर two दो weights, क्वेश्चन। wait आ रहे हैं, it is going over a pulley and two weights are attached, ठीक है? A wire elongates by L millimeter when only W is attached, ठीक है? If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, यहाँ W यहाँ W, ये बीच में तार है, ये वाला तार, यहाँ से यहाँ तक जो L लेंथ था ना, वही L है। तो कितना एलोंगेशन होगा? एलोंगेशन ऑफ द वायर विल बी इन मिलीमीटर। एलोंगेशन ऑफ द वायर इन मिलीमीटर। पहला सिंगल वायर था, हैंगिंग कंडीशन में था। अभी इसी वायर को हम चाहे किसी के ऊपर रख लें, किसी टेबल के ऊपर रख लिया और दो पुली में W दे दिए, इसका एलोंगेशन कितना होगा? नहीं तो इसको इस फॉर्म में दे दो। वेट नहीं, ये क्वेश्चन इस पैटर्न में दिया हुआ है। ये पुली है, गोज ओवर ए सिंगल पुली दिया हुआ है, W, डबल पुली नहीं है। डबल पुली में भी क्वेश्चन बन सकता है। सेम तार था, मैंने उसको पुली के ऊपर यहाँ W दे दी, ठीक है? अभी एलोंगेशन कितना होगा? मैम सेम रहेगी। इंडिविजुअल वायर में कितना होगा? हमें L/2 होगी दोनों साइड। इंडिविजुअल वायर में L/2 और टोटल एलोंगेशन अगर तार को आप बाहर निकालो तो सेम रहेगा। टोटल एलोंगेशन आपका रिमेनिंग सेम, इंडिविजुअल L/2। इज द आंसर अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। आर्यन समझ में आ गया होगा? पुली दोनों में हाफ हाफ करते हैं तो Yes, ma'am. L/2 हो जाता है। नेक्स्ट, यू आर हैविंग टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। दिया क्या हुआ है? मटेरियल। व्हाट इज सेम हियर? सेम में पहले आपका है मटेरियल, नेक्स्ट वन नोट डाउन करो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द वायर इज सेम, ठीक है? वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। Where 1 is cross sectional area A and second one has cross sectional area 3A, इसका cross sectional area A है, दूसरे का 3A है। Length of wire 1 increases by delta x, इसको हम delta x increase कर दिए।
ठीक है, बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ फोर्स में इसको डेल्टा एक्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर 2 बाय द सेम अमाउंट, यहाँ भी डेल्टा एक्स के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए, यहाँ अगर फोर्स एफ में ये डेल्टा एक्स स्ट्रेच हो गया तो सेकेंड में भी 3F डेल्टा एक्स स्ट्रेच करनी। आंसर में मेरा है नाइन एफ 6F 4F 9F, 3F आंसर में नहीं है। AIEEE 2009 नाइन होगा 9F 9F is the correct answer, 9F is the correct answer। is any doubt here? इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, मैम फाइंड आउट करो। प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में आपको, आ रहा है समझ में? मैम एक बार नहीं? एक्सप्लेन करो। ओके, भव्य भारद्वाज समझ में आ रहा है? मैम नहीं? मैंने बोला एक्सप्लेन कर दो। ओके, तुम ही बोले। एफ बाई ए आगे बताओ, एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल को हम डेल्टा एक्स लिखेंगे क्योंकि डेल्टा एक्स ही हमारा इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है। यस मैम। तो अगर मैंने इसमें एक ए और मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ ए मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं फॉर्मूला को चेंज करके प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहे हैं, कोई काम मतलब कोई गलती तो नहीं किया ना। जैसे बोलते हैं ना, एक मारा एक खा गया, ऐसे एक आप न्यूमरेटर में एरिया मल्टीप्लाई किए, एक डिनोमिनेटर में किए, दोनों कट जाता है, लेकिन हमारे लिए एक फॉर्मूला निकलता है। तो इसमें से यस लेंथ इंटू एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। एफ इंटू यस वॉल्यूम, मैम मेरे पास मटेरियल एंड वॉल्यूम सेम दिया हुआ था, याद होगा आपको, मटेरियल यस एंड वॉल्यूम सेम दिया हुआ था। तो किसी भी हालत में मुझे वॉल्यूम के पास तक पहुंचना था। आपको फोर्स सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, यस डेल्टा एक्स सेम दिया हुआ है, तो वाई किसके ऊपर यस प्रोपोर्शनल है? हम्म? एरिया के नहीं, फोर्स स्क्वायर। सेम, वाई सेम दिया होगा। क्वेश्चन में क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, वाई मैम सेम दिया सेम हुआ है क्या? मटेरियल है ना मैम, Two सेम wires are मटेरियल। made of the same material and have same volume. However, wire one has cross-sectional area A, second has cross-sectional 3A. Length of wire one increases by delta x by a force F. इसका मतलब फोर्स पूछा हुआ है मुझे, सेकंड में फोर्स पूछा हुआ है। तो y के फॉर्मूला मेरे पास है एफ बी ए स्क्वायर डेल्टा एक्स। देखिए तो फॉर्मूला ऑफ y, एफ बी ए स्क्वायर डेल्टा एक्स। इसमें से f क्या है, f को निकालो। F is equivalent to y into a square into delta x divided by b वॉल्यूम, ठीक है। इसमें से y तो सबके लिए सेम है, दोनों तार के लिए, वॉल्यूम भी सेम है, दिस वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज सेम, डेल्टा एक्स इज सेम। तो फोर्स किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, कनक आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोपोर्शनलिटी आएगा तब जाके ये समझ में आएगा। ये सारे क्या करते हैं बच्चे, पता है इसको बार बार सेम मटेरियल होता है तो इसमें कौन किसके ऊपर प्रोपोर्शनल फार्मूला निकाल निकाल के याद करते हैं, यही आपको कोचिंग सेंटर में सिखाता है। अगर सेम मटेरियल है तो एफ स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम, और भी होगा और कुछ दिया होगा इसमें। तो ए अगर 3 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स कितना टाइम बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स। ऐसा समझ में आगे, समझ में ना, आर्यन समझ में आ गया? Yes, ma'am. आर्यन बीच में सो मत जाओ, अपने अपने घर में बैठे हो, पता नहीं कब फुल फेज क्लास स्टार्ट हो गई, तब पता चलेगा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। यहाँ तो सब है इसमें। नेक्स्ट, मैं एक यंग्स मॉडल से एक बल्क मॉडल से ऐसे बीच बीच में चेंज करके ही जा रहे हैं। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%? आपको क्या दिया है, 1 लीटर वाटर, ठीक है। आपको पूछा है इसका प्रेशर कितना चेंज होगा व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, सेम प्रॉब्लम जो पहले दिया हुआ था, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय
थोड़ा सा परसेंटेज में चेंज कर दिया। अगर उस क्वेश्चन को कोई समझाया तो इमीडिएटली आंसर चाहिए। 0.10% कंप्रेस कर दिया। हाउ मच शुड द प्रेशर बी चेंज? प्रेशर चेंज डेल्टा पी कितना होगा? चेंज इन प्रेशर, न्यू प्रेशर कितना होगा? ठीक है। वाटर का आपको पता हुआ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यू हैव टू रिमेंबर समटाइम्स आल्सो इफ इट इज नॉट अवेलेबल 2.2 into 10 to the power 9। ये फॉर्म में आंसर देना है। हाँ, इसको डायरेक्ट आंसर मिलेगा मुझे, न्यूमेरिकल्स में आंसर मिलेगा। बाद क्या होता है? क्या क्या 10 to the power 9 है, 1 के बाद 0.13%। क्वेश्चन 2.2 into 10 के पावर 6 होगा। टेल मी अगेन। 2.2 into 10 to the power 6 होगा। यस यू आर करेक्ट। 2.2 into 10 to the power 6, क्योंकि आपके पास सीधा फॉर्मूला आ गया। डाल देंगे। हाँ, K इज इक्वल टू PV बाई डेल्टा V। ठीक है, उसी में डाल देंगे। डेल्टा V बाई V ऑलरेडी गिवन 0.10%। इजी है ये क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तब प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इतना नहीं होना चाहिए। बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन इजी आता है जनरली। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज आस्क्ड टू यू? फ्रैक्शनल change in volume. You have to find out the fractional change in volume of a glass slab. You are given a glass slab. ये glass slab का fractional change in volume when it is subjected to hydraulic pressure of 10 atom. 10 atom hydraulic pressure में जब हमें glass slab को रखते हैं तो उसका fractional change in volume क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा V बाई B इंटू 100%। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V बाई B। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है फाइंड डेल्टा V बाई B इंटू 100%। आपको गिवन क्या है? हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटम। 10 एटम इसका मतलब 10 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कल निकाले थे 1.013। 10 into 1.013 into 10 to the power 5 ये था हमारे पास। ठीक है, और what else? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B वैल्यू आपके पास है 37 into 10 to the power 9। These two are given 37 into 10 to the power 9। आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा। डेल्टा B बाई B इंटू 100%। सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या फिर डिवाइड करो, फाइंड आउट करो। एस टेल मी कितना परसेंटेज है? हम फ्रैक्शन निकालना है हाँ, या फिर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V बाई V इंटू 100%, ये निकालना है आपको। डेल्टा V बाई B का फॉर्मूला क्या है? P बाई B अभी निकाले थे। डेल्टा V बाई B इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। ये फॉर्मूला हमारे पास अभी था। प्रेशर आपको दिया हुआ है, दिस वन इज प्रेशर, दिस वन इज बल्क मॉडुलस, और उसके बाद 100% मल्टीप्लाई करना है। खाली कैलकुलेशंस बाकी है। हम Okay. परसेंटेज निकाल 0.273%। 0. मेरे पास आंसर है 0.00274%। हम 10 to the power minus 3 into 10 to the into 10 to the -3 power -3 into 0.027। आ रहा है क्या? 0.00274? नहीं, गलत है आंसर। मेरे पास आंसर है 0.00274। यस मैम, आने यही दीजिए आंसर आंसर ये। 0.00273। हाँ, 273 274 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो MCQ हो जाएगा, तो एंड में आपको दिखाई जाएगा कि आपका आंसर क्या है।
इसमें में इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है, ये सुनो, हो सकता है ना? यस मैम। Yes. सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म। ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सारे AIEEE का है, और सेम क्वेश्चन CBSE भी आपको उठाएगा और टीचर उठाएंगे, चाहे कोई भी स्कूल का ले लो, क्वेश्चन कोई नया नहीं लेता, सारे जो AIEEE JEE मेंस में आए हैं वही उसी को डाला जाता है। 2-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B। बल्क मॉडुलस B, ठीक है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर P, इसके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर P दिया हुआ है, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। क्वेश्चन समझो, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, इसके रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होगा? पहले तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मीनिंग क्या होगा? Yes, जैसे फ्रैक्शनल डिक्रीज हम इन डेल्टा वॉल्यूम V था, by V। डेल्टा V नहीं, डेल्टा V बाई V इंटू 100% तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम डिक्रीज है। मैम फ्रैक्शनल क्रॉस डिक्रीज सेक्शन इन एरिया एरिया पे में फर्क क्या है? पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम वही डेल्टा V बाई V में ही कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा R बाई R चाहिए हमें। हमें चाहिए एक्चुअली डेल्टा R बाई R। वॉल्यूम के फॉर्मूला आप ले सकते हो। क्वेश्चन में अगेन आई एम ट्रेडिंग, क्वेश्चन में किस टाइप का मटेरियल दिया हुआ है? बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 pi 4/3 r cube। पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आपका 3 टाइम्स है, तो आपके पास आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 3 डेल्टा आर बाई आर होगा जब एरर्स निकालते हैं। डीबी डेल्टा V बाई B, V अगर इतना होगा तो डेल्टा V बाई V आपका 4/3, और यहाँ 3 4/3 पाए तो कांस्टेंट, इसको K मान लो, 3 डेल्टा R बाई R आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा R बाई R। यस, टेल मी द आंसर इफ यू आर हैविंग। P/3 आंसर में B। दे देती हूँ, हम P/3 आंसर में दे रही हूँ आंसर। ओके, आंसर में मेरे पास है B/3P, B/3P, P/3B, 3P by B और P/B। Yes, which one is correct according to you? First, second, third, हम fourth. B। You're telling Second. second one, P/3B. What about others? Yes ma'am, second one। Question, Himanshu, you are getting. Dishita, are you getting this answer? Dishita, अगर नहीं हो रहा है तो बोलो क्लास में। कनक, दिशिता और उमिता, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता आपको प्रैक्टिकल वाइवा में कॉमर्स हो जाता है अपने आप। तो आप तो पार्टिसिपेट इन क्लास, ये क्लास वाइवा में आंसर नहीं दे पा रहे हो कुछ भी। यहाँ गलत बोल बोल के आपका चेंज होगा, बट यू आर नॉट डूइंग इट। ओके, टेल मी हाउ टू फाइंड आउट दिस आंसर। आपके पास क्या दिया हुआ है? बी के फॉर्मूला, आपके पास क्या है? माइनस PV बाई डेल्टा V। ये हमारे पास बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। तो P बाई डेल्टा, तो डेल्टा V बाई V, अगर मैं डेल्टा V बाई V को निकालती हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है? अभी ये इसको कॉमन फॉर्मूला मान लो। बल्क मॉडुलस में डेल्टा V बाई V होता है, प्रेशर बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। माइनस नहीं आएगा? चलो ठीक है, माइनस भी लिख दिया। माइनस प्लस के ऊपर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है ना यहाँ। तो डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V मेरे पास कितना था? मेरे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा V बाई V मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा R बाई R, ठीक है। खाली अगर मैं उसका एरर लूँ तो कांस्टेंट हट जाएगा, 3 इंटू डेल्टा R बाई R। तो 3 डेल्टा R बाई R इज इक्विवेलेंट टू P बाई B। सीधा आंसर, 3 डेल्टा R बाई R इज इक्विवेलेंट टू P बाई B। तो व्हाट इज डेल्टा R बाई R? P/3B। दिस इज द आंसर। कनक, टेल मी इफ यू आर गेटिंग और नॉट। कनक सो चुके हो क्या? कनक आर यू हियर? छोड़ के चले गए बच्चे, न्यूमेरिकल्स खाली देखने से छोड़ के बच्चे चले जाते हैं। बंशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. बंशिका,
Bani, are you here? Kanak, you are still here. You are not telling. Kanak, tell me whether you are understanding or not. चलो उसका माइक नहीं काम कर रहा है पता नहीं कुछ। बब्बे मिश्रा, where are you? Aryan, are you understanding? Yes, ma'am. आर्यन, चलो अच्छा है, आर्यन ने यस बोल दिया तो हो गया। क्योंकि और कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं यहाँ, सब मुश्किल से एक दो बच्चों की आवाज आ रहा है। यही होता है ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज। नहीं, यू आर थिंकिंग एडवांटेज बट लेटर इट विल बी डिसएडवांटेज। सिर्फ 2 ही मॉड्यूलर्स के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, अनकाउंटेबल क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ भी करो खत्म ही नहीं होता क्वेश्चन। हिमांशु, आर यू हियर? Yes, ma'am. ओके, इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हिमांशु, मैम इसके इससे पहले पहले वाला वाला मैंने किया नहीं था, मैं लीव हो गया था, तो मैंने इससे जो आपने कराया था वही किया है। ऐसे कैसे बीच में लीव हो जाता है? मैम मैंने लीव करी थी क्लास, एक्चुअली हेडफोन की बैटरी लो हो गई थी तो दूसरा हेडफोन लिया था। ओके, यू आर गिवन ए रॉबर कोड, यू आर गिवन ए रॉबर का कोड दिया है आपके पास। इसका लेंथ मैम आपकी वीडियो ऑफ होगी। लेंथ ओके, इट इज यू आर Yes, गिवन ma'am. ए रॉबर कोड। इसका लेंथ है L मीटर एंड एरिया है A मीटर स्क्वायर। कनक, इससे पहले वाले में आवाज नहीं था, अभी तुम्हारा आवाज आया। एरिया है A मीटर स्क्वायर, इज सस्पेंडेड वर्टिकली। ठीक है, इफ द वायर एक्सटेंड्स अंडर इट्स ओन वेट, कोई वेट ऐड नहीं किए, रबर बैंड का यही होता है। कुछ टाइम के बाद ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया अपन इट्स ऑन इट्स ओन वेट। ठीक है, चेंज इन लेंथ इज डेंसिटी ऑफ रबर। ये डेंसिटी ऑफ रबर आपका D दिया हुआ है, डेंसिटी आपका D दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस Y दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इफ द वायर एक्सटेंड्स अंडर इट्स ओन वेट देन चेंज इन लेंथ। डेल्टा L कितना है? व्हाट इज डेल्टा L? व्हाट आर द गिवन टर्म? आंसर आपको मिलेगा D में, Y में और L में। आंसर में आपका 3 चीज होगा और एक एक्स्ट्रा आप जो फ्री में मिलता है हैंगिंग केस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं आपका आंसर लिख रही हूँ। पहला आंसर मेरे पास दिया है L² D G डिवाइडेड बाय 2y, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर L² D G डिवाइडेड बाय 4y। थर्ड आंसर दिया है L² D G डिवाइडेड बाय y, एक y है। नेक्स्ट आंसर दिया हुआ है सिंपली वही L। नेक्स्ट आंसर L। इसमें से एलिमिनेशन में कितना काट सकते हो? Yes, anyone getting the answer? I am finishing solids क्योंकि 2 ही दिया हुआ है आपके पास सिलेबस में, bulk modulus and Young's modulus. We have done sufficient number of numericals, MCQ based on these. These are the MCQ based on your NCERT exemplar and IEEE exam of recent years. Those who are doing well, they are becoming confident gradually. Yes, anyone? मैम ये फोर्थ ऑप्शन Which one is the दिया था correct? आपने? फोर्थ ऑप्शन L ही है, पूरा प्योर L है। ऊपर लिखा है चेंज हो रहा है, उसके बाद लिखा है रुक जाओ अभी। मैम हमें क्या निकालना है?
ओरिजिनल लेंथ आपको एक्सटेंशन डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ एल दिया हुआ है, डेल्टा एल निकालना है। वो बोला है कि जितना लेंथ है उतना ही एक्सटेंड हो जाएगा। मैम सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका है एल स्क्वायर डी जी बाई वाई। इज एनीवन हैविंग एनी अदर आंसर? थोड़ी देर रुक जाओ, दूसरों को करने दो, तब डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर है। और किसके पास आंसर है? मैम 1 मिनट होने वाला है। पहले बार ये तो एल स्क्वायर डी जी सबका सेम है, एक में 2y, एक में 4y, एक में y डिवाइड है। डेंसिटी d यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ। स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स बाय एरिया। यू कैन टेक योर वेट बाय एरिया, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेट और एरिया में है। मैम ए Weight ऑप्शन एल स्क्वायर। Who is telling? Option A is correct. Himanshu? यस मैम। वेरी गुड। तो वेट में आपका क्या होता है? वेट आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? मैम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट होता है मास इनटू जी। तो मास क्या है? वॉल्यूम इनटू एरिया इनटू जी। यस और नो? वॉल्यूम इनटू यस मैम। एरिया इनटू जी। तो वॉल्यूम आपका किस में आएगा? एरिया। वॉल्यूम आपका किस में आ जाएगा? ये फाइनली आ जाएगा ए एल डी जी। ए एल आपका वॉल्यूम है, डी आपका डेंसिटी है। मास को वॉल्यूम डेंसिटी इनटू में डेंसिटी डी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ए एल डी जी बाई ए आ गया। तो आपके पास क्या आ गया टर्म? एल डी जी आ गया। यस और नो? स्ट्रेस के फॉर्मूला क्या आ गया? एल डी जी आ गया। इसके Yes, बाद ma'am. इसको वाई में डालो, इसके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में डालो ना उसके बाद। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट L बाई 2, यहाँ से अगर आप वेट डालोगे तो यहाँ से लेंथ आपका L बाई 2 रह जाएगा, सब जगह चेंज होगा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका y वैल्यू कितना हो जाएगा? y इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन में आपका स्ट्रेस होता है LDG। ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा LDG डिवाइडेड बाई स्ट्रेन आपका 2 इंटू एल बाई डेल्टा एल। 2 इंटू एल आपका एक्सटेंशन डिवाइडेड बाई एल, ये होगा। तब आपका चेंज इन लेंथ, ये आपका डेल्टा एल। डेल्टा एल तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन में डेल्टा एल कितना? दिस इज योर वाई वैल्यू। डेल्टा एल आपका हो जाएगा पहले वाला, एक एल यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एल स्क्वायर हो गया, तो नीचे 2l आ गया, 2y आ जाएगा फिर। ठीक है। आप ये डेल्टा एल लाओगे, इसी क्वेश्चन में डेल्टा एल को आपको यहाँ लाना है। तो डेल्टा एल को अगर आप यहाँ लाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आपका y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y था, y आ जाएगा। तो ये l ऊपर गया, तो डेल्टा एल कितना हो गया? एल स्क्वायर डी जी डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहा? 2y। दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग? Yes, are you getting this answer or not, Aryan? Aryan, last में. Yes, ma'am. How many classes you have attended today? All 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now it is free for you. We have done maximum. We have touched many varieties of numericals. Now it is up to you. मैं अगर यहाँ 10 numericals क्यों, 1000 numericals same topic के आपके लिए available है. At least do up to 50 or 100 same topic. टॉपिक हमारे पास क्या था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप सिंगल चांस
2YL क्यों हुआ? 2Y by हाँ, L. क्योंकि वो ये जो हैंगिंग कंडीशन में जो mg वैल्यू होते हैं ना वो L/2 में काम करता है। जो mg होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट में ही टच करता है। ठीक है, वेट ऑफ द कॉर्ड एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप एक हैंगिंग रॉड में अगर वेट हैंगिंग करते हो तो वो एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये एक लॉजिक है सेंटर ऑफ मैम ग्रेविटी, जो आप ग्रेविटेशन ऑलरेडी हो चुका है। हाँ बताओ। मैम हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि पहले जो यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है उसमें हम मास की वैल्यू डाल के फिर हम डेल्टा एल को निकाल दें? लेकिन हमारे जो आंसर दिया हुआ है जिस पैटर्न में वो नहीं मैच करता ना। सेम क्वेश्चन हम किए हैं लेकिन उसमें आंसर हमारे कोई दूसरे पैटर्न में दिया था। यहाँ आंसर दिया है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यंग्स मॉडुलस। इसके ऊपर बेस करते आपको फॉर्मूला वो सेट करना पड़ेगा नीचे वाला ऑप्शन देख के, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर लाना है। ओके, यस मैम। अगर आंसर में आपका ये सारे फॉर्मूला आ रहे हैं तभी भी उस मेथड में देख लो, आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, आई होप वी हैव डन एटलीस्ट वी हैव टच्ड। मैंने बोला कि हम लोग सही किए, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम किए हैं लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हम किए हैं इस मैटर। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट पास्कल्स लॉ मैम जो चल रहा है। Yes, मैम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर हमारे सिलेबस में है। नहीं है ना, उससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स उसी में है जेई मेंस में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। टाइम अगर फ्री होता है तो हम उसको समझा के उसका कर देते हैं। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, उसका 3-4 फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप किसी भी बुक खोलो तो वही आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यस और आपके न्यू सिलेबस देखो हटा दिया। ऐसे कोई हटाता है? स्ट्रेस मेन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाए तो एनर्जी समझाओ ना पहले। पता नहीं सीबीएसई ने क्या किया। मैम हम स्ट्राइक टेल मी। मैम ऑप्शन में DVGL by Y था क्या? ऑप्शन डी जी एल स्क्वायर बाई 2y था, यही करेक्ट आंसर है। डी जी एल बाई वाई था, डी जी एल बाई वाई था, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर क्योंकि आप पूरे लेंथ के ऊपर वेट ले रहे हैं। लेंथ आपका हाफ वेट पे चलेगा। ठीक है, लेंथ आपका एवरेज लेंथ पे वेट काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। हैंगिंग वायर में ये कंडीशन लेना पड़ेगा। ओके ओके, यू कैन लीव द क्लास नाउ। Saturday you have your Thank you, ma'am. PTM. Saturday you are having your PTM.